Tell me, how many roles managers play? Anyone? Speak up. Come on, don't keep quiet. Yes, how many roles managers play? Tell me, after that we'll give you an activity. You have to do it. Oh my God. Shame, guys, shame. Yesterday we have learned everything. You are a management student. You know everything. What happened? Slept everyone? Yes. Abhishek, Guru Prasad, Renuka, what happened? Snehal, Pranoti, Abhishek. Kund, Amol, Gaurav, don't listen. You all of joined yesterday. So tell me, what is the role of managers? मत बोलिए, मैं भी चुप रहती हूँ. जब तक आप नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी. आप मुझे देखिए, मैं आपको सुनूंगी बस. अजय. Sorry, ma'am. Yesterday I was not in the lecture. Able to all of you? A manager has to perform functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Yes. Anyone? Anyone? Correct. But it's a book language. I need some experience to learn. Manager are functioning, planning, organize, staffing, directing, and controlling. Yes. Okay, so yesterday we have seen some labels of managers, some roles of manager, how they play, and means every aspect, wherever they go, how they play, how they behave with their colleagues, how they communicate with their colleagues, how they motivate with their colleagues, blah, 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 right? Now, we have seen where managers are working, right? After that, we have seen some concern like efficiency, effectiveness, and all. Then what managers do? So, managerial activities, make decisions, allocate resources, direct activities of others to attain goals, right? So, attaining goal is most important. Okay? Now, roles of managers, interpersonal role, ये किसी ने नहीं बताया मुझे, ठीक है? Interpersonal roles, informational roles, decisions roles, हमने yesterday में वीडियोस भी देखा था, ये सारी चीजें बताई थी. So, जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हो, मेरा ही नहीं, किसी का भी, just keep your notebook in front of और पेन भी होनी चाहिए और नोट करिए कि क्या क्या आपने पढ़ा है. Got it? Yes. तो फिर आप बताते क्यों नहीं? ये तो आपकी डायरी में होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट, ये सब देखा था. इंटरपर्सनल क्या होता है, फिगरेट क्या होता है, लीडर, लाइजेंस, देन मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोकर पर्सन, देन एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर. ओके, ये सब हमने देखा था. अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे पढ़िए, ठीक है? स्किल अप्रोच में देखा था हमने टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स. ओके, अभी मैं आपको एक, बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ सभी को. मतलब जो भी करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा बड़ा सा पेपर लेना है, ठीक है? जो लोग कॉलेज में आए होंगे, जिन्होंने देखा है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक्टिविटीज
जो बच्चों ने की हुई है. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो जो लोग कॉलेज में आके madam. गए हैं, yes. Yes, anyone have problem? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So जो बच्चे कॉलेज में आके गए हैं उन्होंने देखा है नोटिस बोर्ड में किस तरह से एक्टिविटीज लगी हुई है ना. तो आपको भी एक बड़ा प्लेन पेपर, एक कलरफुल भी हो सकता है या व्हाइट भी हो सकता है, उस पे आपको आपका नाम लिखना है और एक अच्छा सा एक्टिविटी बनाना है. जैसे एक्टिविटी में क्या बनाएंगे, यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट योर नेम, योर रोल नंबर एंड योर सेमेस्टर. ओके, आपका हेडिंग आएगा. Okay, you have to just mention in management fundamental activity, FM activity. आप ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, उस पे हेडिंग लिखना है कलर पेन से FM activity और मैनेजमेंट फंडामेंटल और फंडामेंटल मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी. उसमें क्या करना है, someone just show the functions of manager, someone is show the roles of manager, someone is shows the skills of managers. Okay, जो भी आप पीपीटीज में देख रहे हो या एक्स्ट्रा आपका कुछ टेक्निक्स whatever you have वो आपको दिखाना है. और वो पेपर जब भी आप कॉलेज आएंगे, मतलब जो यहीं पे रहते हैं वो आके कभी भी सबमिट कर सकते हैं टिल सैटरडे और बिफोर सैटरडे. गॉट इट? व्हाट? Yes, ma'am. एक्टिविटी समझ में आई है? Yes, ma'am. सो आपके ग्रुप मैम में इसको आप डाल कब तक कंप्लीट करके सबमिट करना है मैम? सॉरी, कब तक इसको सबमिट करना है, मतलब कब तक आके लगा सकते हो? जैसे हो नेक्स्ट जाता है सैटरडे कभी तक कभी करिए. कभी भी चलेगा. नेक्स्ट सैटरडे तक करिए. नेक्स्ट सैटरडे तक क्या? ठीक है. हाँ, आज की कौन सी डेट है? 6 है ना? 6 है. हाँ, तो मतलब 15-16 को आप करिए सबमिट. 15-16 मतलब सैटरडे संडे छुट्टी है मैम, संक्रांति है शायद. नहीं, हमको छुट्टी नहीं है तो ठीक है, आप उसके बाद आइए. और जो लोग नहीं आ सकते हैं, है ना, जो लोग आउट ऑफ है, उन्होंने क्या करना है, एक्टिविटी बनाना है और वो एक्टिविटी का फोटो विथ उनके साथ, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे उनका एक्टिविटी और वो वैसा मुझे भेजना है. गॉट इट? जो बाहर गांव है. ओके. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, is it necessary to come to the college? If you are stay in away, far away, so it's not okay. But Ma'am, if you for are in working near college, students. if you are in near in college, मैंने अभी अर्जेंसी में नहीं बोला है आपको. अर्जेंसी में वही लोग भेजिए नेक्स्ट सैटरडे जो कॉलेज के आजू बाजू में रहते हैं, कॉलेज के प्रीमाइसेस में रहते हैं, है ना, वडगांव में रहते हैं. वो लोग पर्सनली आके सबमिट कर सकते हैं क्योंकि अभी वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ब्ला 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 उसके लिए विजिट कर रहे हैं ना कॉलेज में. या कोई Yes. आपका दोस्त आ रहा है उसके साथ से भेजिए. लेकिन नहीं आना हो रहा है या फिर जो लोग बना रहे हैं एक्टिविटी, उनका मुझे स्क्रीनशॉट आपने अपने फोटो के साथ प्लस एक्टिविटी के फोटो के साथ मेल करना है. Got it? What I am saying? Okay, ma'am. Got it? Yes. लेकिन अच्छा होना चाहिए, नो मिस्टेक्स, क्लियरिटी, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वर्डिंग अच्छा होना चाहिए. ठीक है? Yes, ma'am. गुड. तो एक्टिविटी समझ में आ गई आप, मतलब लेकिन मैनेजर से रिलेटेड ही होनी चाहिए, टीम वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए. मैनेजर प्लस लीडर, ऐसा भी आप, किसी का ड्राइंग अच्छा होगा तो वो ड्रॉ करके बनाइए, किसी का वर्डिंग अच्छा होगा तो वर्डिंग करके बनाइए. थॉट्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स है मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना. लीडर्स है मैनेजमेंट के, उनको क्लब करके आप बना सकते हैं. लॉट ऑफ everything available in digital. Got it? But active, और जिसका अच्छा होगा उसको अच्छे मार्क्स. Okay, I will हेलो मैम, हर्षल बात कर रहा हूँ. check everyone and then appreciate in front of you who is the best manager हेलो in future. Yes. हेलो. हाँ मैम, हर्षल बात कर रहा हूँ. Yes. दो बोलिए जन हर्षल. करें तो
दो जन में करे तो नहीं चलेगा? मतलब हाँ एक कर साइड सकते पे हैं आप, दोनों दो का मिलके वर्क, करिए, मुझे कोई इशू नहीं है, आप दो मिलके दोनों का करिए, नाम चार और मिलके करिए। नाम और आईडी नाम भी आना रहेगा सब चाहिए, उसके ऊपर। हाँ आपका नाम आना चाहिए, आपके पेपर ओके पे नाम आना चाहिए, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा challenges for managers चल रहा था, right? Yesterday we have seen some challenges. What kind of challenges face managers? Okay, everywhere means कोई भी company हो, any company, तो managers how to accept the challenges and not only accept but fulfill the challenges. Okay, so just a second. Yes. So how they fulfill the challenges. So cultural diversities. What it is, any kind of culture. अगर आप in a house है तो आपको पता है कि nowadays pandemic and some issues are there. So you are in house and how you feel like that. Okay. But if you are working in a big company, big environment, big people, lot of people, so their culture is totally different. Okay. So with organizations becoming becoming global, the managers have from different socio-cultural background, because in front of the people you feel better, you feel motivated, but in-house you don't feel better, nervous, means you feel like that yes, it's going on, no one is motivate you, no one is challenge you, no one is appreciate you, so that time you feel like that yes, but in front of people, in between people, you feel like that yes, I want to accept this challenge, right? Yes, मुझे तो ये करना है, इसने कर दिया है, मुझे भी करना है. So that kind of feeling is most important. So if you are working in big company, so that feelings you feel like that yes. So if you are a manager, if you are a leader in any company, so that is the background is most important, and regular practice makes you perfect. Okay, so practice, जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हमें प्रैक्टिस होती है, हम मतलब वो वर्क का जो कल्चर होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, डिसिप्लिन, just we say like that, discipline, we follow all disciplines. Okay, so approaches जो होता है, connectivity होती है, interactions होता है, that is most important. So lot of challenges every day we have face lot of challenges, but not only face, we have fulfilled every challenges. Now social responsiveness, what it is, so society accept, Excuse me, ma'am. business, yes. Ma'am, are you taking slides? We are able to. My voice is not clear. Your voice is echo. No, Okay, my voice is echo. Now it is okay. Hello. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, ma'am. Fine. So social responsiveness, what it is, society expect like business to display an active responsiveness towards them by demonstrating a socially responsible behavior. Obviously, जब आप एज अ स्टूडेंट्स होते हैं तो कॉलेज में जब एंटर करते हैं तो आपको लगता है यस, मैं एकदम गुड लुकिंग, मतलब मुझे एकदम गुड लुकिंग दिखना है ना, मेरा जो अपीयरेंस है, ड्रेस कोड एकदम, मतलब आप ऐसा फील करते हैं कि जब भी आप एंटर करें तो सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना. तो सेम थिंग लाइक दैट कि जब आप मैनेजर्स होते हो, कोई कंपनी में जाते हैं, है ना, कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, जैसे ही मैं एंटर करूं सब अट्रैक्ट करे, है ना, सोसाइटी. ऑब्वियसली अगर आप अच्छे पर्सन है तो डेफिनेटली पीपल आप पर अट्रैक्ट होंगे, है ना, पीपल आपको रिस्पेक्ट करेंगे, व्हाटएवर सोशल, आपके भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, सोसाइटी में रहते हैं तो ये काम करना है, वो करना है. So like that. So social responsiveness is most important. Your behavior, your way of communications, your body language, your what we say, appearance and all. Okay, so society expect business to display an active responsiveness towards them by demonstrating a socially responsible behavior. It's most important, right? Then ethical and moral obligation.
रूल्स डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, right? So there is a great expectation. सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि everyone needs respect. The way of communication is polite. Okay, behave is too much polite. So there is a great expectations of society or any environment of company. So shareholders of stakeholders of business that the managers should display ethical correct behavior, right? Like wrong or good, bad, true, false, and lot of people just observe you. They don't communicate with you. But, hello, again, Nico. Yes, now. I'm Yes, audible ma'am. to all of you. Yeah, thank you. So every society जहाँ पे भी रहती है या फिर हम जहाँ पे रहते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब पीपल जितने भी है कम्युनिटी हमारा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमसे अच्छा कम्युनिकेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, राइट? तो आप Ma'am, your voice is breakable. नाउ इट इज ओके, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम. नाउ इट इज ओके, Yeah. यस, नाउ इट इज ओके, Yes, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. मुझे ऐसे ही बताते रहिए, एक्चुअली आज कॉलेज में लेक्चर ले रहे हैं इसलिए, तो आज मेरा लैपटॉप एनीवे I don't give any kind of excuse, but if our voice is not clear, let me know. Okay? हाँ, तो आते हम. Are you seeing on the slides? Yes. Have you seen my slides or not? Because now we can do first slide. Now slide is seen. Have you seen? Yes, we are able to Ma'am. see. 1 second. Yeah. Now it is okay. Okay, ma'am. Yeah. So we discuss ethical and moral obligations. Okay. So ethical and moral obligations mention like that कि wherever you go, you behave politely, you communicate politely. Okay. Because others people observe you how to communicate, how to cooperate with your people, how to work with your team and all. Okay. So it's most important. Next slides. Let me know is it visible or not. Okay. 1 second. Okay. So this is the challenges for managers. Okay. So now tell me, or if you have any questions regarding this, let me ask. Then we'll start next PPT. Okay. Ma'am, your voice is breaking. Again, my voice is breaking. Yeah. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. it is okay. Now it is okay. Okay. Yeah. Wait a moment. I will share next PPT. Ma'am, you can try with the headphone also. Yeah, but I have not now. I think you are sitting in a big hall. That's why your voice is echo. Yes, I know, but no issue. We'll manage. Wait a moment.
Now am I audible? Yes. Yeah, clear. Yes. Have you seen my PPT? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Approaches of management. Okay. So what is the approaches of management? See. So what is approaches? Anyone? What is the meaning of approaches? Way of looking. Yes. Anything? Anyone? Correct? Anyone? In management, there have lot of approaches. Okay. So actually मैं ना अपना वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है. So please adjust today only. Okay. So yes, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes. Now it's clear. Yes, that's why I just closed my video. So approaches to management is like that. A lot of like empirical approach. So we have seen here what it is exactly. Then interpersonal behavior approach, like human behavior approach. Third one is the group behavior approach, the operational approach, decision theory approach, the communication center approach, mathematical approach, socio-technical system approach, and contingency approach. ठीक है, आप इसका भी एक एक्टिविटी बना सकते हो, बट इसमें आपको सिंबल्स या पिक्चर्स डालने होंगे. इट्स अ बिग, बहुत अच्छा होगा ये. एनीवे, so let me see the approaches to management. Okay, if you are a manager in a company, so extremely sorry. So you face a different type of approaches. Okay, if you are a leader in a company, you have faced a lot kind of approaches because you have to behave with your colleagues, you have to behave with your team members, your HODs, your director, your secretary, then outsiders also. Banks people approach is different. Okay, business approach is different. So you have interact a lot of people. Got it? For example, जैसे हम लोग घर में होते हैं ना, फैमिली में, तो फैमिली में मान लीजिए आपको पेरेंट्स है, मम्मी पापा और आपके बहन भाई है ना. तो पेरेंट्स के साथ वे ऑफ टॉकिंग का जो अप्रोच होता है वो आपका बहुत डिफरेंट होता है ना. जैसे बोलते हैं कि 5 fingers इज नॉट इक्वल, राइट. देन अगर आप बड़े हैं फैमिली में तो और अच्छे हैं, डिपेंड ऑन यू कि अगर अच्छे हैं मतलब सभी अच्छे ही होते हैं, बट कोई कोई कैसा एटीट्यूड होता है किसी में, कोई एकदम शांत होता है, बात ही नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा बात करता है. तो वे ऑफ कम्युनिकेशन इज टोटल डिफरेंट. तो बहन के साथ जब आप बात करेंगे तो बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे उसको. अगर बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो तो उससे आप थोड़ा सा अरे हाँ कर ले, हाँ कर लूंगा, देख लूंगा, इस काइंड का अप्रोच होता है ना. तो ये हुआ फैमिली का. बट इन कंपनी में जब आप जाते हैं, कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो वहां पे जो आपका अप्रोच होता है, वहां पे आप घर जैसा माहौल नहीं बना सकते. वहां पे तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम स्मार्ट, गुड लुकिंग, देन आपका जो अपीयरेंस है वो गुड होना चाहिए, बॉडी मतलब स्माइलिंग फेस ऑलवेज, है ना. आपके फेस पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं दिखना चाहिए. नो एटीट्यूड, नेवर. थोड़ा सा भी दिखने में आ गया तो आपका आजू बाजू वाला वो आपको दूसरी बार देखना ही पसंद नहीं करेगा. तो अपने आप को इतना अच्छा गुड लुकिंग रखिए कि बार बार लोग आपको देखना पसंद करें, आपके स्माइल को देखना, बिकॉज स्माइलिंग फेस सबको अच्छे लगते हैं. मतलब आपको नहीं, बट आपको देख के जो अदर पीपल होते हैं उनको हैप्पीनेस आता है, राइट. सो कंपनीज में ये सारी चीजें, मतलब एज अ मैनेजर बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, बहुत ही एक्टिव होना, है ना.
एक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आप रतन मतलब टाटा की कंपनी में काम करते हो, रोज रतन टाटा ऑफिस में आते हैं विजिटिंग के लिए, तो आप नहीं चाहोगे कि नहीं यार मैं मतलब मेरा इंटरेक्शन एक बार तो भी हो, एक बार तो भी उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, या आप उनको आगे से जाके बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, है ना। तो ऐसा आपका बिहेवियर, ऐसा आपका अप्रोच रखिए कि लोग खुद होके, चाहे वो कोई भी हो, खुद होके आपको गुड मॉर्निंग कहे, खुद होके आपसे communicate करे, but you have to change your attitude, you have to change everything. So that is the empirical approach, है ना। Then interpersonal behavior, you need to change your behavior with others, always human behavior approach, always appreciate people who, those who are working with you. हम लोग काम करते लेकिन किसी को अच्छा बोलते ही नहीं, अप्रिशिएट ही नहीं करते, नेवर। कभी तो आप गुड बोलिए, यस गुड, वेल डन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इस तरह के आप जब अप्रिसिएशन देंगे, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजरियल लेवल तो आपको अप्रिसिएशन भी देना आना चाहिए। इफ यू आर नॉट अप्रिशिएट तो वो क्यों काम करेगा, वो बोलेगा इस तो हमेशा का ही है, ऑलवेज क्रिटिसाइज करता है बंदा, तो वो आगे से अच्छा काम कभी करेगा ही नहीं। बट अगर आप उसे अच्छा, आप ये मत सोचिए कि आप मैनेजर है तो लोगों ने आपके पास आके बोलना चाहिए या नहीं, ये बिहेवियर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, ओके, ऑलवेज शो योर काइंडनेस। गॉट इट? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आर यू स्लेप्ट? No. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what I am saying? The manager should have kind behavior. Yes. Yes. So next the group behavior approach. Okay, ये तो ठीक है, आप अपनी कैबिन में बैठे हैं और लोगों को देख रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, काम बता रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, दैट इज गुड, ठीक है। इवन आउट ऑफ द वे मीन्स अगर आप बाहर भी जाते हैं, कहीं बैंक में मिलने जा रहे हो या कहीं क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, तो दैट टाइम ऑल्सो यू शुड बिहेव प्रॉपरली, ओके। अगर आप मेल पर्सन है और अगर फीमेल पर्सन से आप इंटरेक्ट करने जा रहे हो, मीटिंग पर्पज से जा रहे हो, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट हो, ओके, ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू हर, राइट। एंड फीमेल पर्सन अगर मेल पर्सन से मिलने जा रही है तो ऑलवेज डोंट शो योर एटीट्यूड, ओके, जस्ट बिहेव प्रॉपरली। नाउ द ग्रुप बिहेवियर अप्रोच, ग्रुप बिहेवियर, हेलो, yes, anyone want to ask question? I have observed the manager behavior change organization to organization. For example, yesterday I went in SBI Bank. That manager is talking very rudely with me, and I am doing job in corporate words. So in corporate manager, they are talk very politely. Yes. So is this correct? Yeah, actually he is working in SBI Bank. Which bank you have to go? SBI Bank for that DBT Yes, I checking know. my. See. Yes. What happened now? SBI is, you know, you have to meet SBI Bank manager, right? And you are a corporate manager, right? Yes. So आप SBI वो तो overall सबको पता ही है, but you did good कि you behave polite. Don't expect others. Managers ने ये भी एक attitude होना चाहिए कि you have to show your behave in front of them. Don't expect like that ki what others behave with you. But after that he feel like that ki, oh my god, as a corporate manager comes to meet me and he behave very politely, but as a SBI manager how should I behave? He don't know, but don't expect other. That is good. Okay, so yes. So means think you should learn some kind of things. Always respect to others, okay, don't expect from others always, because you know like that कि SBI is a big bank, okay, उसका आपको पता है कि SBI all over branches, सभी जगह उसके branches है, और वहाँ का बिहेव और वहाँ का जो सर्विस है वो हमें पता है कैसा है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं 15 साल से वहाँ पे मतलब
accounts hai and all, but always keep polite. Okay, so group behavior approach में जब आप group में काम करते हैं, है ना, society में काम करते हैं, number of people के साथ काम करते हैं, lot of people, तो आपको उनके साथ भी behave polite ही रखना है. Always be polite. Always keep smiling. Don't show your knowledge in front of them. Don't show your attitude in front of them. If they are something behave with rudely, or they are saying something like that you don't know. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है, you don't know how to do it. बहुत कुछ बोलते हैं, but don't show. Yes sir, I don't know. Sorry sir. Say politely, sorry sir. Got it? So जब भी आप ग्रुप में होते हैं तो आपको ग्रुप में भी अच्छा ही बिहेव करना है, मोटिवेट करना है, कोऑपरेट करना है. ओके, सो दैट इज द सोशल सिस्टम अप्रोच. आप जितना बिकॉज आपको पता है कि आप जब ग्रुप में होते हैं आप लीडर होते हैं, है ना, और बाकी जितने भी लोग होते हैं व्हाट दे आर डूइंग, दे फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस. ओके, बिकॉज आप उन्हें मोटिवेट करते हैं. अगर उनसे गलती भी हो जाती है, इफ दे आर डूइंग सम मिस्टेक, सो आप उन्हें ये मत बोलिए कि ये रॉन्ग है, आप बोलिए ठीक है, इसमें ये करेक्शन करिए, है ना. दैट काइंड ऑफ बिहेव यू हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ देम, राइट. तो इस तरह से आप उनको कोऑपरेट करिए, उनके साथ बात करिए. तो व्हाट हैपेंड, दे पीपल रिस्पेक्ट यू, दे पीपल लर्न फ्रॉम यू, दे पीपल ऑलवेज गिव इन प्रायोरिटी. व्हेनेवर, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो बंदा आपके लिए काम करेगा ही करेगा, है ना. उनके सामने कुछ मत बोलिए आप, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ग्रुप, सोसाइटी, सोशल, है ना. बहुत सारे आप फंक्शंस में जाते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाते हैं या कॉर्पोरेट फंक्शंस में जाते हैं, बहुत सेमिनार्स होता है, वर्कशॉप्स होता है, वेयर सो हाउ यू फील लाइक दैट, द एनवायरमेंट, द वे ऑफ टॉकिंग, जहाँ पे पीपल होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन, स्पेशली कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स जब आप अटेंड करते हैं तो वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, different criteria, they communicate with each other, they respect with each other, they handshake with each other, so everything they are doing because they know we are in society now. हम लोग social में है, society में है, so behave like that. Then the operational approach, what it is, operational approach, management process, schools. Operational मतलब जहाँ पे वर्क हो रहा है कंटिन्यूअसली, आप मतलब काम करते करते कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा करो, फिर अभी ये एक्टिविटी है, उसके बाद ये काम होने वाला है, उसके बाद. सो ऑपरेशनल अप्रोच मतलब ऐसे नहीं कि वो लोग काम कर रहे हैं और आप अपनी कैबिन में बैठ के मस्त से बैठे हैं. नो 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 नो, नेवर. आपको भी उठ के उनके साथ क्या करना है, हेल्प करना है, कहाँ क्या कैसा है उनको बताना है, डायरेक्शंस बताना है. यस, यू फॉलो दिस, ये यहाँ पे नहीं ऐसा चाहिए, ये ऐसा नहीं वैसा. That is the operational approach, working approach, इसे आप बोल सकते हैं. Got it? Yes or no? Yes. So that is the approach. I think how many of you working and कोई है ऐसा जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, या कोई है ऐसा जिसने मतलब लग रहा है कि नहीं, we need to change ourselves. थ्योरी जो आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की, जो लोग वर्किंग है उनको लग रहा है कि यस ऐसा होना चाहिए. दिस इज माय क्वेश्चन, आई एम आस्किंग फॉर यू. यस मैम, ऐसा होना चाहिए. मतलब अभी तक जितना आपने के जो भी रोल्स है या फिर अप्रोच है, रियलिटी में वैसा होता नहीं है, टू बी फ्रैंक. नहीं तो व्हाई इट्स नॉट हैपेंड, बिकॉज़ वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग ना. If you are doing this thing, definitely it will be happen because we follow our seniors always. So don't be follow, you just follow the rules, you just follow the regulations, whatever you learn, you just follow it, definitely it will happen. Just change ourselves, है ना. हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं. So आज से आप लेके you don't copy to others. आपको एकदम यूनिक दिखना है कंपनी में. मेरा कहने का ये सब बताने का ही, सिखाने का ही मतलब ये है. क्यों मैं इतने वीडियोस दिखाती हूँ, क्यों मैं इतनी एक्टिविटीज दिखाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है एवरीवन टैलेंटेड है, सबके पास स्किल्स है, लेकिन यू शुड बी शो योर यूनिकनेस कि आप डिफरेंट हो, आपका बिहेव डिफरेंट है, आपकी पर्सनल डिफरेंट है.
तभी तो आप मैनेजर कहलाओगे, तभी तो आप लीडर्स बनोगे, है ना? आदमी तो सभी सेम है, ह्यूमन बीइंग तो सब सेम ही है, सब मतलब सबके पास हैंड, सब दो आंखें, दो हाथ, पैर सबके पास है, बट यूनिकनेस आपको दिखाना है, और वो यूनिकनेस दिखाने के लिए, आने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, तभी तो लोग आपसे इंटरेक्ट होने खुद होके आएंगे, राइट? मैनेजर बनना नॉट अ जोक, सभी बनते हैं, बट यूनिक। आपने कभी सुना है आपकी कंपनी में, ये मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट आपने जैसे अभी कहा कि ऐसा होता नहीं है, राइट? तो आपने जो भी देखा है, तो वो आपको सही लगता है या गलत लगता है, या जो भी मैनेजर्स आप देखते हैं वो आपको सही लगते हैं या गलत लगते हैं? डिपेंड्स। अभी मतलब मेरे जो कंपनी में थे, मैं मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी, आई वाज आपका वर्किंग विद नाम सीड बताइए। इन्फोटेक। यस, माय नेम इज कोमल मैम। हाँ, यस कोमल, यस। सो आई वाज वर्किंग विद सीड इन्फोटेक। सो उधर दो टाइप के मैनेजर्स थे, एक असिस्टेंट मैनेजर था और एक हेड मैनेजर थे। यस, तो हेड मैनेजर में इतना एटीट्यूड नहीं था, ही वाज रियली वेरी पोलाइट, ही यूज्ड टू हेल्प अस इन ईच एंड एवरीथिंग। बट उसका उल्टा असिस्टेंट मैनेजर था, ही यूज्ड टू शो एटीट्यूड, बहुत मतलब गलत ही एटीट्यूड में जाते थे। सो हम लोग को उनसे कुछ डिस्कस करना भी पसंद नहीं था। ओके ओके, ऐसे ओके, सो ऐसे ऐसे होता ही है, दैट्स व्हाई वी आर ये। तो आप उनसे क्या सीखते हैं कि नहीं यार, अगर मैं इसकी जगह रहूंगी, या व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यस 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 लाइक हुआ दैट, मैम, यस सेम यस, हुआ उसका। मतलब जब मैंने वो चीजें देखी जो मुझे पसंद नहीं है, व्हेन आई गॉट प्रमोटेड टू असिस्टेंट मैनेजर, सो आई चेंज द आउटलुक ऑफ व्हाट असिस्टेंट मैनेजर शुड बी इन माय कंपनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो Hello, ma'am. मेरा, यस, This is Ajay. Can I share my experience? ऑफ कोर्स, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। I'm doing job in a multinational company, and my office is located in Australia, Sydney City. So my most of the clients are in Australia, in Sydney City, and I'm doing job from the Pune. Okay. Okay. So I'm lead associate. I handle my colleagues, my managers, and as well as my clients also. So Very what good. happened one day, my onshore team, means my Australian clients call me, and they tell me most of the brokers means my clients, Yes, they I are know. come in office physically. They come in office physically and ask, hey, where is Ajay Gaikwad is sitting? We want to meet Ajay Gaikwad. So they are very surprised. They feel Ajay is sitting in Australia and dealing with them in Australia. So it will be very proud moment for me, Yes. because I am handling my team, my manager, and my clients also. Yes, yes. I really clap for you, Ajay. That is the unique. You have to do it, right? Yes, Yes. really clap for you. And This will you show motivate like that ki, yes, you show like that ki doesn't matter where you are, but you have to show your uniqueness. You have to show your working approach with your clients who are working in Australia, right? Yes. Yeah, really. So that's why the approaches of बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, but they don't know how to behave like that, how to communicate like that. Okay, मैंने ये देखा है, मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज हम लोग सारे इंडियन मेंटालिटी में वर्क करते हैं, बट मैंने ये हमेशा देखा है कि जब भी हम लोग अदर कंट्रीज में वर्क करते हैं, तो वो दे रियली communicate with politely. रियली बहुत अच्छी लगती है। तो हमें भी ये सीखना है ना? हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं हमारे सेम गुड हैबिट्स तो जाने दीजिए, हम लोग ऑलवेज बैड हैबिट को फॉलो करते हैं और हम लोग सेम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो यही हमें चेंज करना है। वी नीड टू चेंज इट, वी नीड टू चेंज होल मैनेजमेंट, नॉट ओनली होल, पूरा इंडिया का ही मैनेजमेंट आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने मैनेजमेंट का मतलब ये अप्रोचेस, योर बिहेवियर, योर ये अगर आपने सीख लिया, तो आप रियली अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट आप बना सकते हैं। नॉट ओनली मैनेजमेंट, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। गॉट इट? सो चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिकनेस दिखाइए अपना, कि लोग आपको पूछे कि यस, वेयर इट इज द पर्सन, आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू टॉक हिम, ऑलवेज। और ये अभी हो सकता है बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट नाउ, यू आर
learning something new. Got it? So next it is like that. Operational हो गया. Now decision theory approach. What it is? Decision theory approach means आप इतने अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स है उन्हें तो सीखना ही है, बट ऑलवेज शो योर यूनिकनेस. कुछ तो भी नया ऐसा दिखाइए कि आप ना डिफरेंट, और सामने वाला बंदा बोले कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए काम के लिए, कि ये पर्सन ठीक है, मैं इसी से काम कराऊंगा. बिकॉज पोलाइट बिहेवियर, वे ऑफ कम्युनिकेशंस, राइट, तो रिस्पेक्ट, तो ये सारी चीजें. नाउ डिसीजन थ्योरी अप्रोच में क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो दैट टाइम व्हाट हैपेंड, लॉट ऑफ वर्क्स इन आवर शोल्डर, प्रेशर्स, ओके, सभी चीजें एक साथ ही मांगते हैं. इट्स हैपेंड लॉट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप. डजंट मैटर, यू जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि बस ऑलवेज ब्लेमिंग, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए था, वैसा नहीं, वैसा चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑलवेज. और जो सुनता है वो बोलता है यस सर आई विल डू, यस सर आई विल डू, यस सर आई कैन. नो 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 नो, चेंज योर अप्रोच टोटली. फर्स्ट तो आपको परफेक्शन देना है काम में, कि मैं गलती करूंगा ही नहीं. सामने वाले को चांस ही मत दीजिए बोलने का कि वो आपको बोले कि यार तूने ऐसा किया. फर्स्ट सीख लीजिए अभी से. Never given a chance to find your mistakes. सबसे पहला तो परफेक्शन. जहां परफेक्शन होगा, no one मतलब blame you, always appreciate you. ये एटीट्यूड होना चाहिए. अगर आपका वर्क, सी ऑल ओवर वर्ल्ड आपका मतलब ये मायने नहीं करता कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं और कितने अच्छे नहीं, बट अगर आपका वर्क इज अच्छा है ना, तो everyone likes you, everyone appreciate you. So पहले प्रायोरिटी आप अपने काम को दीजिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपका हैंडराइटिंग कैसा है. अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो स्टार्ट करिए उसे अच्छा बनाना. आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो स्टार्ट करिए. आपको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है तो स्टार्ट करिए रीड करना. एवरीथिंग नाउ वी हैव फाइंड लाइक दैट कि डिजिटल है, सारी चीजें अवेलेबल है. अगर आप 1760s की बात करेंगे या 19 की भी बात करेंगे तो ये सारी चीजें तब नहीं थी. बट नाउअडेज एवरीथिंग यू हैव, बट आपको अप्लाई करना है. अगर आपको लीडर बनना है, लीडर बनना है, तो आपको ये सारी चीजें विदिन 2 मिनट में आप सकते हैं. उस दिन मैंने एक कमेंट्स पढ़ा था आपके ग्रुप पे थी, तो कि किसी बच्चे ने लिखा, मैं उसका आपको पता ही होगा, किसी बच्चे ने लिखा था कि यार एक दिन में इतना सारा सेशन कराएंगे ये लोग, तो हम तो एक दिन में ही एमबीए कर लेंगे. और सेकंड कमेंट था कि ठीक है भाई, हम लोग भी ना ऐप बनाएंगे कि हाउ टू कंप्लीट एमबीए अ डे. बहुत अच्छा लगा. मतलब ये थॉट्स आपके माइंड में आया, तो यार आपके माइंड में ये क्यों नहीं आता है कि ठीक है वनडे में तो ये एक दिन में मैं अपने आप को चेंज करूंगा, एक दिन में मैं फ्लुएंसी अपने इंग्लिश को फ्लुएंट करूंगा. ये ऐसा क्यों नहीं सोचते हो आप? करो. जब आप ये सोच सकते हो तो ये भी करो. आई रियली अप्रिशिएट इफ यू आर डूइंग दिस थिंग्स. रियली गॉट इट. सो इस तरह से अगर आप अप्रोच रखोगे और इस तरह से अगर आप पॉजिटिवली एवरीथिंग करोगे, तो यू चेंज एवरीथिंग यू चेंज. होल इंडियन सिस्टम यू हैव टू चेंज. पता नहीं करोगे कि नहीं, बट आई एम किया. मतलब ये जितने भी आप बच्चे हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे ही लाइफ में. तो आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है ये एमबीए में. ये 2 साल है तो 2 साल में दिखा दीजिए, आप कुछ अच्छा बन के दिखा दीजिए और फिर मेरे सामने आइए, मैं बताऊंगी कि यस, चैलेंज एक्सेप्ट करिए. गॉट इट. सो द कम्युनिकेशन सेंटर अप्रोच, डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन सेंटर जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए. वे ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है आपके कलीग के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके क्लाइंट के साथ. ओके, every time you is too much polite, don't speak loudly, except if you did mistake, accept it, yes, sorry. Okay,
Don't show your attitude in front of your parents, your colleagues, your friends. Never. Always show polite respect. Okay. Now, mathematical approach. What it is? If you are working some technical or some financial, if you are a manager of financials or finance or some business analytics, so they are mentioned in figures, right? तो आपको फिगर टू फिगर लर्न होनी चाहिए, फिगर टू फिगर आपको पता होना चाहिए what happened. Okay, you don't forget it every time. Got it? I will give you an example. When I was working in corporate, तो वहां पे मेरा एक HOD था, CFO था, चार्टर्ड अकाउंटेंट. इतना उसका ऑफ कोर्स ही मतलब बहुत ज्यादा एटीट्यूड था उसमें, बट माय गॉड व्हेन जब भी वो मुझे कुछ था ना, व्हेन ही वाज गिवन सम काइंड ऑफ वर्क एंड आई जस्ट कंप्लीटेड एंड जस्ट पुट इन फ्रंट ऑफ देम, he said, no, the figure is something wrong, Harshali, the figure is wrong. I really means मुझे पता है, I know that कि this year the profit is going on 200 crores. You have mentioned something wrong. You have to check it. I really shocked. जब मैं शुरू में थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उसका, कि that time I was only 20-21 years ना. सो मुझे लगता था यार क्या हमेशा कहता है, लेकिन जब मैं उसका चेक करती थी, एक बार मैंने सोचा कि यस, इसको अपन यही करती है, हमेशा बोलता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, चलो आज इसने जो फिगर बताया ना, आज मैं चेक ही करता हूँ. देन आई जस्ट मैं अपने कलीग के पास गई, उनसे सारा फॉर्मेट लिया और उनको बोला कि सर मुझे बैलेंस शीट देखनी है. ओ माय गॉड, मैंने जब देखा तो सही में उसने जो कहा था, मतलब वो कब का था बैलेंस शीट, मतलब अभी से मतलब 15 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो 15 साल मतलब 2000 के पहले 98 का फिगर था वो, मुझे अभी भी याद है. जब मैंने एक एब्सोल्युटली करेक्ट जो फिगर उसने बताया था, तो आपका भी अप्रोच ऐसा होना चाहिए. आपको आजकल तो वो सब मोबाइल, और या पहले तो ऐसा था कि मोबाइल फोन नहीं थे तो हमें सारे नंबर याद रहते थे. आजकल तो हमें किसी का नंबर भी याद नहीं रहता, खुद का भी नंबर हमें याद नहीं रहता है. तो ये एटीट्यूड चेंज करिए आप, बहुत चेंज की जरूरत है. हमारे पास सारी चीजें हैं, तो कहने का मतलब यही है कि वो बंदे को सारी चीजें मतलब क्योंकि उसने किया होगा हैंडल, है ना, जो करता है उसे सारी चीजें याद रहती है डेफिनेटली. तो आपको भी ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. आपके जो भी CFO मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब करना नॉट अ जॉब, सारी चीजें याद होनी चाहिए. क्या आगे पीछे क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या फिगर है, फिगर टू फिगर मैच होना बहुत जरूरी है. तो मैथमेटिकल अप्रोच भी होना चाहिए. अगर किसी से आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितना हुआ है, कितना आज कैश फ्लो कितना बना है, आज कितना कैश आया है, कितना प्रॉफिट हुआ है ना, मार्केट से कितना पैसा आने वाला है, कितना भेजना है, ये भी मैथमेटिकल अप्रोच. ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो पता होना चाहिए किसको कितना सैलरी देना है, क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट इट. गॉट इट? नेक्स्ट, सोशो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच. आपका टेक्निकल स्किल भी स्ट्रांग होना चाहिए. सोशल, जब आप लोगों के साथ होते हैं तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं सोशली, है ना. तो किसी को आप बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, किसी को पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, किसी को काम करने का स्टाइल पसंद होता है. तो सोशो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच जो होता है वो आपको मेंटेन करना आना चाहिए. ऐसे मतलब ऑलवेज स्माइलिंग फेस, मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, बट ये भी मेंटेन करना आना चाहिए. ऑलवेज जो भी है, मीडिया में हो आप, सोसाइटी में हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी मिल रहे हो, तो एकदम फ्रैंक, किसी ने कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए. ये हमेशा आपके दिमाग में रखिए कि मेरा बिहेव ऐसा होगा. अभी मैं मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, ये 2 साल में मैं अपने आप को चेंज करूंगा. मैं कभी किसी से क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा. गॉट इट? देन whatever my goal, I achieve it. डिसाइड करिए. नाउ सिस्टम अप्रोच.
सिस्टम अप्रोच क्या होता है कि जब भी हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज होता है, नेटवर्क इश्यूज की वजह से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता. समटाइम्स वी वर्क लेट नाइट, लॉट ऑफ अप्रोचेस होते हैं सिस्टम्स के. तो वहां पे भी आपको आपका एटीट्यूड शो नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ सिस्टम, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ मशीन, राइट. तो समझना है वहां पे कि हाँ यार हो सकता है. तो और चैन के साथ चलना है, मतलब जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको लेके चलना है, उनको कोऑपरेट करना है, उनके साथ काम करना है. ये आप बात ध्यान में रखिए कि आज अगर आपने उस पर गुस्सा किया है या आज आप उस पर नाराज हुए हैं तो ये डजंट मैटर कि कल भी आप उसके साथ वैसा ही बिहेव करोगे, है ना. तो ठीक है, इट्स हैपेंड, बट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट ऑलवेज. लास्ट, contingency approach. What it is means सबके साथ अच्छे से जो भी है, मतलब you have to behave everyone good manner, always change you and your environment. Okay, so contingency is most important. Yes, anyone want to ask questions? You got it, the approaches of management? Yes or no? Got it. Got it, very good. Any questions? So do you understand what activity you have to prepare? If you have any problem, then you just discuss with your group, you know. Ma'am, can Yes. you repeat the activity because I have joined late today, so I don't know what is the activity. Yeah, the activity is like that. You learn a fundamental of management. So you have prepare a chart or session is over, sir. Automatic over. Hello. No, Am no, I you are audible? audible. Yes, yes, Yeah, you are yeah. audible. Sorry. So you have to make a chart. You know, you visit the college, so that time you have seen the notice board. Lot of charts are there, right? So that kind of charts or activity you have to make, like functions of management. If your drawing is good, so you just show the leaders or managers like that. Some functions of management you have seen. So एक बड़ा पेपर लेना है आपको, क्राफ्ट पेपर, कलर पेपर इज ऑल्सो. सो यू जस्ट मेंशन योर नेम, योर एक्टिविटी एंड योर रोल नंबर एंड जस्ट make some activities. If you are making individual, it's good. If you are making in group, it is good, but you have to mention all people names are there. Got it, Anurag? Yes, ma'am. Yes, so you have to make it, and you have to submit it college. If it's not possible now, but you have to just make it and take a photo and Mail it. screenshots, yeah, or and mail to me, right? तो देखते हैं आप लोगों से, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो मैनेजर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं. So depend on your screenshot activity, कितना अच्छा आप बना सकते हैं. मैम हैंडमेड ही होना चाहिए क्या वो? जी, हैंडमेड ही होना चाहिए क्या चार्ट? हाँ, यस, हैंडमेड चार्ट, यस. क्या प्रॉब्लम है? कॉपी पेस्ट करने का इरादा है क्या? कॉपी पेस्ट No, मत ma'am, no. करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कॉपी पेस्ट वाले पीपल. शो योर यूनिकनेस, मैंने अभी बताया है कि शो योर यूनिकनेस. आप क्या अच्छा कर सकते हैं मुझे बताइए. मतलब आप सिर्फ इसी में नहीं, कोई भी कंपनीज का दिखाइए, कोई भी आपने 2-3 वीडियोस देखे हैं तो उसमें किस तरह से वो सब दिखाया हुआ है, लेकिन जो भी एक्टिविटी बनाएंगे उससे मैसेज क्रिएट होना चाहिए. गॉट इट? कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं. गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. So anyone want to ask any questions like approaches of management and challenges of managers? आप अपने जो लोग वर्किंग है वहां का भी बता सकते हैं, हाँ, बट ऑलवेज शो पॉजिटिविटी. ओके, डोंट शो नेगेटिविटी in your chart, in your board, whatever you have to prepare, na, always show positivity and good message. Lot of thoughts are there related to management. Just take it and start to make your chart.
Take your time, no issue. 2 weeks, 3 weeks, but you have to submit. Yes, ask questions. Come on, don't keep quiet. Ma'am, those who are working far, then can we scan and send the photo, or we have to mail it? Yes, definitely. I will told when we start the sessions, those who are in far, they just make your activity and send me the photo or mail. Just so, which session you would like to most, like managers, management? अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से कौन सा सेशन आपको अच्छा लगा, या कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया मैनेजमेंट क्या है? So let me ask, बताइए. मुझे एक्टिव बच्चे अच्छे लगते हैं. कोई सेशन है ऐसा जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो? कैसे हो सकता है ऐसा? Yes. As a mentor, I request you, ma'am, could you please request to Chaudhary sir to share their PPTs when they conducting the lectures? Yeah, you will get every Not a PPT, complaint, this is a but request. actually what happened ki the unit is not completed. When unit 1 is completed, they will share you all PPTs. Okay? Okay, thank you. Yes. Anyone want to ask any questions? No? Okay. Hello. Yes. Yeah, that activity that you told me right now, can I make a theory, or we can say a case study on company and mentioning those points while Yes. explaining the case study? But in short, not In short, yeah. means The वो जो reasonable आपका size. see what happened ना, when our college, जब भी आप कॉलेज में आएंगे तो वो आपका पेपर आप लेके आना है आपको, तो वो जो आपने बनाया हुआ है वो मुझे बोर्ड पे लगाना है. Got it? अभी तो आप मुझे फोटोज भेजेंगे. I just put in front of the मैनेजमेंट की मेरे बच्चों ने ये एक्टिविटी बनाई है फंडामेंटल मैनेजमेंट की. ठीक है, तो वो मुझे सारी आपकी एक्टिविटी बोर्ड्स पे लगानी है. ऐसे बनाइए कि एक ही पेपर में वो आपका आना चाहिए. गॉट इट? अनुराग, समझ में आया? Yes, ma'am. तो सबने इतना अच्छा बनाइए कि जो भी नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे आएंगे या अपने यहाँ के जो सेकंड के बच्चे हैं अभी, तो उन्होंने भी देखना चाहिए कि वाव, बोलना चाहिए वाव. ऐसी बहुत सारी करनी है हमको. अभी तो हमारा पहला ही सब्जेक्ट है. अभी 3 से 4 एक्टिविटीज आपको बनानी है. ठीक है, ये तो पहली एक्टिविटी है जो मैंने आपको दी है. देखते हैं कौन अच्छा बनाता है. ठीक है मैम. यस. मैम एक मतलब पूछना था, क्या हमें सेम डे रिकॉर्डिंग्स मिल सकते हैं क्या? अगर क्योंकि मिस हफ्ते भर का संडे को मिलेगा आई गेस, ऐसे आनंद सर ने बोला था. सो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज वर्किंग जो है उन्हें रेगुलर अभी बेसिस तो पे आप सेशंस. नहीं, अभी तो आप रेगुलर सेशन कर रहे हैं ना? नहीं, मेरे 2 दिन मिस हो गए थे मैम. अच्छा, तो आपको मेल करना है. मैं सभी को बोल रही हूँ जिनके जिनके जो भी सेशंस मिस हुए हैं, जिनको भी ये चाहिए, लिंक वगैरह चाहिए. अभी तो हम यही कंसिडर करके चल रहे हैं कि सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी तरफ से कुछ नहीं आएगा मेल या जो भी आपको चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा. क्योंकि हम लोग भी काफी ये होते हैं, तो आपको मेल करना है कि क्या क्या आपको चाहिए, तो वो आपको सब मिलेगा. ओके. ठीक है, और अपने कलीग्स को भी बताइए कि वो ज्वाइन करे, मिस ना करे लेक्चर्स, है ना? यस मैम. चलो ठीक है फिर. गुड डे. थैंक यू मैम. बाय. या बाय.